अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सड़क हादसे में कमी लाने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सभी ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा सेफ ड्राइव सेव लाइफ परियोजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहे हैं। इसका मकसद सड़क हादसे को शून्य पर लाना है ताकि किसी भी जान सड़क हादसों की वजह से ना हो। इसी क्रम में आज रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चितातोष मंडल के नेतृत्व में रानीगंज ट्रैफिक कार्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि सिया रोड, NSB रोड, मरवाड़ी पट्टी होते हुए वापस से ट्रैफिक कार्यालय में आकर खत्म हुई। यहाँ पर रानीगंज ट्रैफिक के प्रभारी के अलावा ट्रैफिक विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और रानीगंज फाउंडेशन सहित कई संस्था से जुड़े लोग भी शामिल थे। रैली के दौरान ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया और उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए और ट्रैफिक के सभी नियमों का अनुकरण करते हुए वाहनों का परिचालन किया जाना चाहिए ताकि सड़क हादसे ना हो। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60 ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 नंबरे। महिला पहलवानों के आंदोलन को दमन करने की कोशिश एवं अत्याचार कर रही बीजेपी सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा बांकुड़ा जिला कमेटी मैदान में उतरी है। गुरुवार को बांकुड़ा शहर में रैली निकालते हुए विरोध जताया गया, जिसका नेतृत्व AIKKM के जिला अध्यक्ष दिलीप कुंडो ने किया। मौके पर उन्होंने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, जिन पहलवानों ने देश को गौरवान्वित किया है, जिन्हें दीर्घ दिन से यौन उत्पीड़न एवं अत्याचार का शिकार होना पड़ा, सरकार के द्वारा आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांग है कि आरोपी को कठोर से कठोर सजा दी जाए। ऑल इंडिया किसान केंद्र मुक्त संगठन राकार के विक्षोभ प्रतिवाद চলছে। বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিংকে গ্রেফতারের দাবিতে আজকে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছে। যৌন হেনস্থার অভিযুক্তকারী বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সিং অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। ধর্মপদজয়ী কুস্তিগির যৌন হেনস্থার দায়ে ব্রিজভূষণ সিং অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। অল ইন্ডিয়া কিষাণ কেন্দ্র মজদুর সংগঠন কি কারণে দেখুন, আজ নিয়ে 38 দিন দিল্লির যন্তর মন্তরে যে বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে এই আন্দোলন। সেখানে আমরা দেখছি আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন যে সমস্ত কুস্তিগির বীররা, সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগট সহ যারা গোটা দুনিয়ার বুকে ভারতবর্ষের মুখকে উজ্জ্বল করেছেন, সেই বীর কুস্তিগিররা আজকে যৌন হেনস্থা, যৌন নির্যাতন দীর্ঘদিন তারা শিকার ছিলেন। এরই প্রতিবাদে আপনারা এও জানেন যে এই কুস্তিগিরদের যে অ্যাসোসিয়েশন, রেসলার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া WFI, তার সভাপতি বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং, যার নামে অভিযোগ রয়েছে এই সমস্ত কুস্তিগিররা
খ্যাতনামা কুস্তিগিররা অভিযোগ করছেন যৌন হেনস্থা, যৌন লাঞ্ছনা, যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। এইরকম একটা অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও যাকে ইমিডিয়েট পস্কো আইনে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়াটা ছিল অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘ 38 দিন যাবৎ তারা আন্দোলন চালাচ্ছেন যে এই ন্যায়সঙ্গত দাবিতে গোটা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, ধিক্কার জানাচ্ছেন। সেই ব্রিজভূষণ শরণ সিং অভিযুক্ত বিজেপি সাংসদকে গ্রেপ্তার না করে আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আন্দোলনের সমর্থনের নেতা, সংগঠক, কর্মীদের তাদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। দিল্লিতে, হরিয়ানায় এই সমস্ত যে গ্রেপ্তারগুলো চলছে, কঠোর দমনপীড়ন চলছে, কিভাবে অত্যাচার নামিয়ে আনা হয়েছে গোটা দেশের মানুষ, বিশ্বের মানুষ দেখছেন। এই কুস্তিগিরদের তাদের গলায় বুট চেপে দিয়ে বুকের উপর বুট চেপে নির্যাতন করছেন। এই নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে আজকে গোটা দেশব্যাপী বিক্ষোভ চলছে। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এসকেএমের নেতৃত্বে, এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী আজকের এই বিক্ষোভ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবেই আজকে আমরা আমাদের জেলা সদরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। আপনার নাম পরিচয়? দিলীপ কুন্ডু, জেলা সভাপতি এআইকেকেএমএস। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बुधवार की रात पांडवेसर के फूलबागान मोड़ के पास करंट लगने से एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पांडवेसर थाने पुलिस ने दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्र के अनुसार ट्रक असम के तिनसुकिया से रानीगंज के मंगलपुर जा रही थी। रात करीब 1:30 बजे पांडवेसर के फूलबागान मोड़ पर रेलवे फाटक के पास लॉरी के सामने बिजली का तार आ जाने से लॉरी रुक गई। पांडवेसर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को चौड़ा करने का काम चल रहा है और इस वजह से यहाँ वहाँ गड्ढे हो गए हैं, वहाँ सड़क भी संकरी हो गई है। ट्रक के सह चालक वीरेंद्र ने कहा कि ट्रक में 2 चालक दिनेश और मैं था। मैं सो रहा था, उसी समय ट्रक पांडवेसर फूलबागान मोड़ रेलवे फाटक के पास रुक गया। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक ये ट्रक इसीलिए रुकी क्योंकि सामने बिजली की तार थी। जब दिनेश ट्रक से बाहर निकला और ट्रक की छत पर चढ़कर देखने लगा तो 33 वर्षीय दिनेश कुमार को करंट लग गया। आवाज सुनकर वीरेंद्र ट्रक से बाहर निकला और देखा कि दिनेश करीब 10 फीट दूरी पर पड़ा है। उसी वक्त मालगाड़ी रेलवे लाइन पर आ रही थी। उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और रेलवे लाइन से दूर हटा लिया। तभी पुलिस मौके पर आ गई और दिनेश को दुर्गापुर महकमा अस्पताल ले गई। उन्होंने कहा कि दिनेश की मौत सड़क पर ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्र के अनुसार दिनेश उत्तर प्रदेश के संबल जिले के असमाली थाने के गजनी गांव का रहने वाला है। सूत्र के मुताबिक इस दर्दनाक घटना की जानकारी दिनेश के परिवार को दी गई है। कल रात में हम उधर से आ रहे थे, तिनसुकिया आसाम से आ रहे थे, इधर का रानीगंज मंगलपुर का माल लेकर जब हम आ रहे थे तो हम 2 लोग चलाने वाले हैं, तो दूसरा ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, मैं सोया हुआ था। यहाँ पे एक फाटक जहाँ पे गाड़ी का वो हुआ है, मेरे जगह का नाम तो मेरे याद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी उसकी रेलवे लाइन के फाटक से अड़ गई, जो है ऊपर एंगल लगी हुई होती है। अच्छा, वो गाड़ी उसकी रुकने के बाद मैं सोया हुआ था, उसने मुझे उठाया नहीं, गाड़ी वो रोक के और ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो रेलवे लाइन का वो तार जो होता है वो लग गया तो उसमें बहुत तेज़ सी आवाज़ आई जैसे टायर फटने जैसी। तो तुरंत मैं उठा, मुझे तो कोई पता ही नहीं, मैं सो रहा था। जब मैं उठा तो मैं गाड़ी से उतर के नीचे आया तो गाड़ी से 10 कदम आगे वो मेरे साथ वाला लड़का दिनेश पड़ा हुआ था। उसके बाद ये हुआ, जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो उधर ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आ गई। मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी तो स्टार्ट थी, मैंने गाड़ी बैक करके और पीछे लगा दी। पीछे पुलिस वाले भी थे, पुलिस वालों ने और मैंने वो कार में रखा और रखने के बाद बैठाने के बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके गए, वो एक्सपायर हो गया। पांडवेसर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। 100 दिनों के काम को तत्काल शुरू करने और उस काम के लिए सभी बकाया मजदूरी का भुगतान, ब्लॉक क्षेत्र में आवास निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने आदि मांग को लेकर सारा भारत खेत मजदूर यूनियन की तरफ से आधारथुर ग्राम पंचायत प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले सारा भारत खेत मजदूर यूनियन की तरफ से इलाके में जुलूस निकाली गई, जिसके उपरांत ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर खेत मजदूर यूनियन बांकुड़ा जिला सहायक सचिव विनोद बस के जन आंदोलन नेता श्यामल मिद्धा और सुजय पॉल सीटू जिला नेता उज्जवल सरकार, शिक्षक आंदोलन नेता आशीष पांडे ने विरोध प्रदर्शन पर वक्तव्य रखे। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड किसान परिषद के नेता मोहन धवल ने की। बैठक में प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख तत्काल घोषित करने की मांग भी की गई। ये भी चेतावनी दी गई कि ममता बनर्जी की भ्रष्टाचार से ग्रस्त टीएमसी सरकार अगर लोगों की रोजी रोटी की मांगों के साथ खिलवाड़ करती है तो लोगों को उनकी मांग के लिए एक बड़े आंदोलन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में खेतीहर मजदूर श्रमिक महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। बांकुड़ा सनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। बीते 22 मार्च को दुर्गापुर अदालत के समीप सरकारी अधिवक्ता देवव्रत साईं पर हत्या आरोपियों को जमानत दिलाने एवं मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर लाखों रुपए वसूली करने के आरोप लगाते हुए अभियुक्तों के परिजनों ने हंगामा मचाया था एवं इस मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग भी की थी। महिलाओं द्वारा हंगामा किए जाने एवं शिकायत को देखते हुए बुधवार ज्वाइंट लीगल रिमेम्ब्रास्टर आनंदमय तिवारी दुर्गापुर पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायतकर्ता महिलाओं से घटना के संदर्भ में पूछताछ की। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित अड्डा गेस्ट हाउस में अधिकारी आनंदमय तिवारी बुधवार दोपहर पहुंचे, जहां पुलिस की निगरानी में लौदोहा थाना क्षेत्र के कैलाशपुर से आई अभियुक्तियों के परिवारों के आधा दर्जन से अधिक महिलाओं से बारी बारी से पूछताछ की। बैठक के पश्चात महिलाओं ने कहा कि अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिए हैं। दूसरी तरफ मामले को लेकर सरकारी अधिवक्ता रह चुके देवव्रत साईं ने कहा कि इसकी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। ज्ञात हो कि बीते 22 मार्च को दुर्गापुर एडीजी 2 अदालत में शेख आमीन हत्याकांड मामले में 8 अभियुक्तियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा घोषणा के बाद अभियुक्तियों के परिजनों ने अदालत के समीप केस लड़ रहे सरकारी अधिवक्ता पर अभियुक्तों को जमानत दिलाने एवं मंत्री के नाम का उपयोग कर परिजनों से अलग अलग समय पर लाखों रुपए वसूली करने का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया था। কি বললো একটু বলুন না। ব্যবস্থা করে দাও বলে বাস। ব্যবস্থা করে দাও। কি বললো সেটা বলুন কি বললো। কি বললো বলুন না আপনি তো তখন বলেছিলেন কি টাকা নিয়েছিল 20 লক্ষ টাকা। ব্যবস্থা করে দেবো। কে বললেন এটা? কে বললেন যে এসেছিল উনি? হ্যাঁ তো কি বিষয় আপনারা কি বলেছিলেন? আপনারা তো এখানে বলেছিলেন চিৎকার করে কি উনি? আমি আর বলতে পারবো না, হয়তো ওইদিকে বললো কত বললে কি ব্যবস্থা করব। কি ব্যবস্থা করব বললে আমরা ঠিক জানাবো। কি জিজ্ঞেস করেছিল? কি জিজ্ঞেস করলো আপনাদের? 20 লাখ টাকা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ কেন দিয়েছিলেন 20 লাখ টাকা? ওই বেল করানোর জন্য। কাকে দিয়েছিলেন? তারপরে কি হলো? কি টাকা ফেরত পাবেন? ব্যবস্থা করব। টাকাটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব। হ্যাঁ ব্যবস্থা করব। কজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো? সবাইকে। কজন ছিলেন আপনারা? দিদি এদিকে কজন ছিলেন বলুন না।
दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। सातग्राम क्षेत्र के नीमचा कोयलियरी खदान के अंदर काम करते समय कोयला श्रमिक की मौत की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रात की पाली में काम कर रहे 55 वर्षीय रंजीत गोप 4 नंबर पीठ में अपना काम करते समय खदान के अंदर दुर्घटना का शिकार हो गए। गुरुवार को एक श्रमिक की मौत से कोयला खदान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। श्रमिक की मौत के बाद पूरी जांच और उचित मुआवजे की मांग को लेकर श्रमिक संघ के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने खदान परिसर में काफी देर तक विरोध किया। इस मुद्दे पर केकेएससी सचिव अर्जुन सिंह ने बताया कि आज सुबह 8 बजे लोगों को इस घटना की खबर मिली। सभी आनंद फानन में घटनास्थल पर पहुंचे, जहां कोयलियरी के आला अधिकारी और चिकित्सक भी मौजूद थे और चिकित्सकों ने रंजीत गोप की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने इस घटना के पीछे उचित जांच की भी मांग की। जांच की मांग के साथ साथ उन्होंने शव के पोस्टमार्टम के भी मांग को सामने रखते हुए कहा कि आखिर सही मौत के कारणों का पता चलना चाहिए एवं उन्होंने मृतक के बेटे को कोयला खदान में नौकरी देने की भी मांग सामने रखी। আমরা বলতে পারবো না, এইসব আমরা জানতে পারবো না। চাপাটা ডুলিতে চাপা পড়েছিল না, ওই তো ঘন্টা মে থেকে না, আমরা এসে বুঝা আনতে গেছিলাম। আমরা তো 4 জন ছিলাম, ঘন্টা নিয়ে 5 জন, 4 জন আমরা বুঝাই লাগাই 61 में 63 अच्छा না, আমরা ওইসব বলতে পারবো না। সঙ্গীত না ডিগনিশন দেবে নিচে কি হতো, আমাকে কাকে কাজ করবো না ডিলার। 8টার সময় আমরা ওই ছানক থেকে খবর পেলাম যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, যেটা আমাদের ডলি যেখান থেকে আপনার লোক যায় আসা করে মাইন্সে, আর ওখান থেকে প্রোডাকশন উঠে। তারপর আমরা খবর পেয়ে আমরা একটা টিম পাঠিয়েছি, ভিতরে গিয়েছে, গিয়ার পর দেখেছে যে রঞ্জিত গোপ যিনি ঘন্টা ম্যানে কাজ করতেন আমাদের এইখানে, ওইখানে পড়ে আছে। তারপরে আমরা মেডিকেল যে আমাদের ডক্টর আছেন এইখানে পোস্টেড আহমদ, ওনাকে ফোন করেছি, এজেন্ট ম্যানেজার সবাই এসছে। তারপরে ওনাকে আমাদের ডক্টর সাহেব সার্টিফাইড করে থাকি ইনি মারা গেছে। ওনারা আমরা দেখেছি যে কানে ব্লিডিং হচ্ছিল। তো যতক্ষণ মনে হয়েছে যে যখন আমাদের ডলি ওই আপ ডাউন করে যখন ডাউনে যাচ্ছিল তখনই ওনার কিছু ওই রকম কিছু হয়েছে, ঘটনা ঘটেছে। তো আমরা দাবি করেছি একটা ইনকোয়ারি করা হোক যে ঘটনাটা কী করে হয়েছে। এখন তো কথা উঠছে প্যার স্লিপ করতে পারে না, কি হয়েছে, কেন ওই যে আছে ডেঞ্জার জোন, ওইখানে যেখানে ডলি বসে ওইখানে যাবার কারো পারমিশন নাই। তো যতক্ষণ ওই ইনকোয়ারি না হবে, পোস্টমর্টম রিপোর্ট না আসে, ততক্ষণ আমি না হলে ম্যানেজমেন্ট কেউ কিছু বলতে পারছি না। তারপরে আমরা ডিমান্ড রেখেছিলাম যে NCW 11 যেটা আজ থেকে লাগু হয়েছে, যে JBCIতে ফাইনাল হয়েছে, আজ থেকে মনে ইমপ্লিমেন্টের ডেট আছে, ওটা যেটা আমরা নেট কপিতে দেখলাম। তো ওইটা আমরা বলেছি যা যা প্রভিশনালি যারা বেনিফিটগুলো আছে ওনার ফ্যামিলিকে দিতে হবে। চাকরি যেটা প্রভিশনালি জয়েন করা হয় অন স্পট ওইটা করা হোক। আর ওনার ছেলেকে যেহেতু একটা মানবতায় আমরা বলেছি ও একটা হালকা জব দেওয়া হোক, যেহেতু গ্র্যাজুয়েট ছেলে, পড়াশোনার ছেলে। তো ম্যানেজমেন্ট মোটামুটি সব কথাগুলো রাজি হয়েছে, আপনারাও ছিলেন, পেপারও এগ্রিমেন্ট একটা সাইনিং হয়েছে এখন। আর এখন প্রভিশনাল জয়েনিং লেটার আসছে এরিয়া থেকে আসার পর আমরা ডেড বডি চানকে রেখেছি। তারপরে আমরা যে নেক্সট প্রসেস আছে সেটাতে যাব। কি মনে হচ্ছে কি কারণে না যে এমন ঘটনা আজ পর্যন্ত নিমচাতে ঘটেনি, এতদিন ধরে কোলেরি আছে কিন্তু ঘটেনি। তো যতক্ষণ ওই ইনকোয়ারিটা না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা বলতে পারছি না। আর কিন্তু লোকও ওইখানে থাকে না, ওইখানে ঘন্টাম্যান লোক ছাড়া সব লোক সেকশনে চলে যায়। তো এটা আমরা ইনকোয়ারি করছি, হতে পারে যখন ইনকোয়ারি হলে চলে আসবে কি করে হয়েছে ম্যাটারটা। অর্জুন সিং, আমার সঙ্গে শিবু যাদব আছেন, আমরা কেকেএসসির ইউনিয়ন, আমি প্রেসিডেন্ট, উনি সেক্রেটারি। सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने इस्पात नगर के स्थित निजी होटल में बीती रात छापामारी कर जुआ खेल रहे 11 लोगों को गिरफ्तार किया। छापामारी में 10,313 नगद रुपए जब्त किए गए। गुरुवार आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों को 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड पर गए आरोपियों में पांडवेश्वर के श्यामला कोलियरी निवासी महेंद्र सिंह, दुर्गापुर के ट्रंक रोड निवासी मानक विश्वास, अंडाल के भादू ग्राम निवासी स्वपन धीवर एवं धुपचूड़िया ग्राम निवासी नव कुमार धीवर शामिल है। आरोपियों के खिलाफ केस संख्या 256/23 के तहत भदवी की धारा संख्या 420/34 IPC 3/4 वेस्ट बंगाल गैम्बलिंग एंड प्राइज कॉन्स्पेक्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि इन दिनों शहर के विभिन्न होटलों में चल रहे अवैध कार्यों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान शुरू की गई है। बुधवार की देर रात सूचना के आधार पर पुलिस ने डीएसपी द्वारा लीज पर दी गई एक होटल के कमरे में औचक छापामारी कर दी। जुआरी होटल में ठहरने के नाम पर कमरा बुक कर जुआ खेल रहे थे। छापामारी के दौरान पुलिस ने कमरे से 11 जुआरियों को हिरासत में ले लिया। छापामारी में 10 लाख से अधिक रुपए भी जब्त किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पांचल के विभिन्न अंचलों में जुआ का बोर्ड बैठता है। पांडवेश्वर, उखड़ा, जामुड़िया इत्यादि स्थानों पर जुआ खेल का बोर्ड बैठा हुआ है। जुआ का खेल का संचालन होता है। पुलिस टीम को भनक मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में होटल से छापामारी की गई, जहां कमरे में जुआ खेल रहे 11 लोगों को हिरासत में लेते हुए 10 लाख से अधिक रुपए जब्त किए गए। पकड़े गए लोगों में उखड़ा के बीजूपाड़ा निवासी अंचित गोराई, धूपचूड़िया ग्राम निवासी दिलीप धीवर, फूलझोड़ निवासी पूजन मुखर्जी, श्यामला कोलियरी निवासी महेंद्र सिंह, पांडवेश्वर के नमनपाड़ा निवासी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, ट्रंक रोड निवासी मानक विश्वास एवं और भी कई लोग शामिल हैं। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड कंपनी के द्वारा श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के माध्यम से CSR के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स पिलर के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को खेल के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विगत 2 वर्षों से कंपनी द्वारा फुटबॉल एकेडमी चलाई जा रही है, जिसमें छात्र एवं छात्राएं दोनों की टीम प्रशिक्षण ले रही है। टीम ने विगत 2 वर्षों में लगभग 21 ट्रॉफी अर्जित किए। फुटबॉल एकेडमी के सुचारू रूप से चलाने के लिए बुधवार को सुमित चक्रवर्ती श्री JS नायडू द्वारा मंगलपुर आवास में 23 खिलाड़ियों को क्षमता वाली आवासीय फुटबॉल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। SSPL फुटबॉल एकेडमी से कुल 80 खिलाड़ी नियमित रूप से कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। फुटबॉल एकेडमी को आवासीय करने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देना है, विभिन्न स्थानों पर बेहतर खिलाड़ी प्राप्त करना, भविष्य में एकेडमी को सुसज्जित करें। कार्यक्रम में मंगलपुर के फैक्ट्री मैनेजर उज्जवल चैटर्जी, जामुड़िया के एडमिन हेड कौशिक गोस्वामी, फुटबॉल एकेडमी के कोच इंद्रनील चैटर्जी, नीति बावरी एवं समस्त खिलाड़ियों के साथ जामुड़िया प्लांट से उर्मिला चैटर्जी एवं राकेश दे उपस्थित थे। आज के 1 जून 2023 আমাদের শ্যাম মেটালিক্সের কাছে একটা ঐতিহাসিক দিন। আমাদের শ্যাম মেটালিক্স ফুটবল একাডেমির হোস্টেল চালু হলো। আপাতত আমরা 23টা ছেলেদের নিয়ে আমাদের এই আবাসিক জায়গাটা খেলাদের তৈরি করেছি, যেখানে যারা খেলছে, যারা আসছে এখানে, তারা দুবেলা প্র্যাকটিস পাবে এবং 4 বেলা তারা খাওয়া দাওয়া পাবে, এখানেই থাকবে।
আর এখান থেকেই আমাদের কলকাতা এবং অন্যান্য রাজ্যে আমাদের প্রোডাক্ট, আমাদের ছেলেরা তারা গিয়ে খেলবে। এই পুরো প্রজেক্টটা শ্যাম মেটালিক্সের CSR প্রজেক্টের আন্ডারে, এবং এই একমাত্র বেসরকারি কারখানা যারা CSR-এর অন্যান্য কাজের সঙ্গে খেলাধুলাকেও তুলে ধরেছে, যাতে এখানকার যুব সমাজ তারা খেলাধুলার প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়। আজকের যে অনুষ্ঠান আমাদের হলো, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের শ্যাম মেটালিক্সের ডাইরেক্টর সুমিত চক্রবর্তী উদ্বোধন করলেন। আশা করি আগামী দিনে আমরা এখান থেকে অনেক ভালো প্লেয়ার পাব। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज मरवाड़ी युवा मंच द्वारा आज दिनांक 1 जून को अंडाल स्थित अंडाल परिवार आश्रम में जाकर वहां रहने वाले 18 असहाय बच्चों को एक समय का भोजन साथ में कुछ महीनों के खाद्य सामग्री शाखा सदस्यों द्वारा दी गई। एक आश्रम के कार्यकर्ता को आश्वासन दिया गया कि आगे भी मरवाड़ी युवा मंच इस तरह के कार्यक्रम सेवा समय समय पर करते रहेंगे। इस सेवा कार्य में उपस्थित समाज के श्री रमेश कयाल, युवा मंच के सलाहकार राजेश जिंदल, सदस्य सत्यनारायण अग्रवाल, प्रतीक मोर, योगेश खंडेलवाल एवं अंशु खैतान। क्योंकि खुला है ना। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। श्री श्याम बल मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निर्माणाधीन श्याम मंदिर के सामने संस्था की ओर से राहगीरों को शरबत और गन्ने का जूस पिलाया गया। संस्था ने लगभग 10,000 शरबत के गिलास और 4,000 गन्ने के शरबत के गिलास वितरण का लक्ष्य रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के विनोद बंसल, पंकज महेश्वरी, सानवर सिंगानिया, मनोज मुरारका, संदीप शर्मा, अमित माधुरिया, आदित्य केजरीवाल, अजित खैतान, दिनेश मोदी, पप्पी मटोलिया समेत संस्था के तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। শিল্পাঞ্চলে উষ্ণতার পারদ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সরকার থেকে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস করেছিল প্রশাসনের মাধ্যমে, বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে, যে অতিরিক্ত গরমে বিনা দরকার ছাড়া মানুষ যাতে বাইরে না বেরোয়। এখন আমরা ঠিক চলে এসেছি খনি শহর রানীগঞ্জে, যেখানে আপনাদেরকে আমাদের PVTVর ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাবো সেই দৃশ্য। শ্রী শ্যাম বাল মণ্ডল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট এর তরফ থেকে যারা এই তিক্ত গরমে অতিরিক্ত নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদেই বাইরে বেরোচ্ছে, তাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শ্রী শ্যাম বাল মণ্ডল চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। তারা এখানে তাদেরকে শরবত এবং আখের রস খাওয়াচ্ছে এবং তাদের মধ্যে দান করছে, তাতে এই গরম থেকে যারা তারা যেন তাদের কোনো ক্ষতি না হয় এই ব্যবস্থাটা তারা দেখছে। এবং এখনও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই চিত্র। এখানে পুরো শ্রী শ্যাম বাল মণ্ডল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মানুষেরা পুরো এখনও শরবত খাইয়ে যাচ্ছে
সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন। এবং আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে জ্ঞাত করি মানে জানাই, শ্রী শ্যাম মণ্ডলের যে নতুন মন্দিরটি রানীগঞ্জের অঞ্জনা মানে NH60 রোডের সামনে যে মন্দিরটি তৈরি হয়েছে, লগভগ আমরা জানতে পারলাম 70 থেকে 80% কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিছু মাস পর এই মন্দিরের শুভ উদ্ঘাটন হবে। এবং আরও বিস্তারিত জানতে তাদের কি কত টার্গেট তারা রেখেছেন, আজকে এই যে মানুষরা বাইরে পথে বেরিয়েছে এই গরমে তাদেরকে মানে কত গ্লাস শরবত এবং আখের রস ওনারা খাওয়াচ্ছেন, আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব সংস্থার মেম্বারদের সাথে। আসুন দেখে নিই তারা আমাদের বিস্তারিতভাবে কী জানাচ্ছে। বলিয়ে স্যার सम्राट आना चाहिए। श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज चलती जो राहगीरी मतलब जितना आदमी जो पब्लिक रानीगंज शहर के इतना धूप में बाहर निकले, क्या सेवा के लिए क्या व्यवस्था की आपने? देखिए, प्रचंड गर्मी का समय है, इसलिए हमारी संस्था श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज ये आयोजन किया है। राहगीरों को कल निर्जला एकादशी थी और आज द्वादशी है। उस शुभ अवसर पर चलते राहगीरों को इस गर्मी में राहत दिलाने के लिए हमने यहाँ 10,000 गिलास लाल शरबत, गुलाब शरबत का ठंडा ठंडा बिल्कुल उसको पिलाया है। और साथ में ये कतार का ईख का रस भी है बगल में, वो भी हमने 4 से 5,000 गिलास पिलाया है, ताकि लोगों को कुछ गर्मी से राहत मिल सके और हम लोग भी श्याम बाबा की कुछ सेवा कर सकें। सर एक चीज़ और बताइए, हम लोगों को श्री श्याम बाल मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट समाज सेवामूलक और क्या क्या मतलब काम में लिप्त है, अगर थोड़ा सा शहरवासी को बताएं। देखिए, एक तो यहाँ पर बाबा का मंदिर बन रहा है, बाबा के अलावा कुछ देवी देवता का मंदिर और भी बनेगा। इसके अलावा नीचे एक हॉल बन रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल है। इसके अलावा हम लोग बीच बीच में कंबल वितरण करते हैं। गर्मी की जाड़े के समय में, गर्मी के समय में वाटर हट लगाते हैं। अभी हम लोग का एक प्रोजेक्ट और होने वाला है निःशुल्क दवाई का। मेडिकल के हिसाब से हम लोग एक होम्योपैथी सेंटर खोलने वाले हैं, अभी उसकी प्लानिंग चल रही है, बाकी जल्द वो कर लेंगे। कुछ महीनों पहले हम लोग यहाँ देखे थे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया था, उस बारे में था और हमने वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया था। जब जैसी सुविधा सरकार पड़ती है ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया हमने, और हम लोग प्रोजेक्ट करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। समाज के भलाई के लिए, सेवा के लिए करते रहेंगे। आपका नाम परिचय सर? मेरा नाम दिनेश मोदी है और हमारे जो मंडल के सदस्य हैं विष्णु सराफ, विमल सराफ, पवन केजरीवाल, इन लोगों के सानिध्य में और इन लोगों के मतलब आशीर्वाद से सब हो रहा है यहाँ पर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। GT রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। जामुड़िया के कनस्तोड़िया क्षेत्रीय अस्पताल के तहत एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसके विषय थे जैव चिकित्सा, अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्रदूषण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और इनके समाधान। गौरतलब है कि पहले विषय पर बात करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर देव कुमार मंडल ने जैव चिकित्सा, अपशिष्टों के प्रकार और इनके उचित निपटान के उपयोगों पर विस्तार से अपना विचार रखे और उपस्थित सभी को इसके लिए जागरूक किया। वहीं दूसरे विषय पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के ही डॉक्टर सौरज सरकार ने पर्यावरण और जीवन शैली के असंतुलन से होने वाले बीमारियों और इनके रोकथाम के उपायों से सभी को अवगत कराया। इस मौके पर क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विश्वजीत बंदोपाध्याय व क्षेत्रीय अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुजीत पाल के नेतृत्व में अन्य चिकित्सक व कर्मी मौजूद थे। सेमिनार के बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि मिशन लाइफ के तहत क्षेत्र के अलग अलग इकाइयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर सुजीत पाल के नेतृत्व में आज क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में सेमिनार सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जो उपस्थित सभी के लिए काफी लाभकारी रहा। এছাড়া মানে যে দুটো মেন মানে প্রাইমারি কজ যেগুলো আছে তার মধ্যে স্মোকিং করছে আর অ্যালকোহল ইনটেক হচ্ছে।
স্মোকিং আর অ্যালকোহল, মদ্যপান আর ধূমপান, এইগুলোর জন্য লাইফস্টাইল ডিজিজ আমাদের মধ্যে আসতে পারছে। তো এবার এগুলোতে কি কি হচ্ছে, মানে কারণগুলো তো আমরা বুঝে গেলাম যে এই কারণের জন্য লাইফস্টাইল ডিজিজগুলো হচ্ছে, বা তার জন্য কি কি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেটা আমাদের ডিজিজগুলো মানে আলটিমেটলি আমরা সিমটম দেখতে পাচ্ছি বা ডিজিজগুলো আমাদের হচ্ছে, তার মধ্যে মেন হচ্ছে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, মানে হার্ট সংক্রান্ত যেসব রোগগুলো আছে, তার মধ্যে হাইপারটেনশন আসছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস আসছে। তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমাদের হার্ট রিলেটেড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, সেই জিনিসটা। এরপর আসছে আমাদের লাংসের ওপর, সিওপিডি যেমন ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, লাংসের সমস্যাগুলো, ফুসফুসের সমস্যাগুলো, এই ডিজিজগুলো আছে। হোক পাতলা হোক কালো হোক ফর্সা, কিন্তু এইটা আমাদের বলতে হবে না, মোটাপা কিন্তু একটা ডিজিজ, ওবেসিটি কিন্তু একটা ডিজিজ। এটাকে মানে গ্ল্যামারাইজ করার কোনো মানে হয় না, এটাকে মাথায় রেখে আমাদের সেইভাবে সেটাকে প্রিভেন্ট করতে হবে। আচ্ছা, এছাড়া যেমন স্ট্রোক হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, হাই কোলেস্ট্রল, এগুলোই আমাদের মেন। এখনকার আমাদের বেশিরভাগ দেখবেন ওপিডিতেও যারা আমরা দেখি পেশেন্ট দেখছি, বা আপনারাও দেখছেন যখন ভর্তি হচ্ছে কোনো পেশেন্ট, সবার মধ্যে কিন্তু দেখবেন হাই ব্লাড প্রেশার, হাই ব্লাড সুগার, হাই কোলেস্ট্রল, এইগুলো কিন্তু এখন সবার মধ্যে একটা এজের পর মোটামুটি 40-45 যাওয়ার পরেই মোটামুটি সবার মধ্যেই এটা কিন্তু চলে আসছে। তো এই সবগুলোকেই মোটামুটি আমরা লাইফস্টাইল ডিজিজ বলছি। আরও কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো হয়তো আমরা সবসময় ভাবছি না সেগুলো নিয়ে, বা সেগুলো চটকে দেখলাম স্ট্রেস থেকে, মানে স্ট্রেস নিজেও একটা মানে স্ট্রেস বা ডিপ্রেশনের একটা ডিজিজ, আবার সেখান থেকে অন্য ডিজিজের আরও উৎপন্ন মানে সেগুলো হতে পারে। তো স্ট্রেসটা আমাদের লাইফস্টাইল, আমাদের ওয়ার্কিং হ্যাবিট, আমাদের ওয়ার্ক কালচার, কীরকম আমরা ডিউটি করছি, কতক্ষণ ডিউটি করছি, মেন্টাল প্রেশার কীরকম নিচ্ছি, সব কিছুর ওপর স্ট্রেস, ডিপ্রেশন, এগুলো সব যেমন ডিপেন্ড করে। এইগুলো হচ্ছে কিন্তু ডিজিজের আন্ডারে আসছে, সবকটাই কিন্তু ডিজিজ, মানে একটা রোগ। তো এবার কীভাবে সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি? প্রিভেন্ট করার মেন উপায় হচ্ছে যেটা বললাম যে হচ্ছে খাবার দাবার। প্রথম যেটা হচ্ছে যে হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি। যে যত দিন যাচ্ছে আমরা খুব মানে খুব অলস টাইপের হয়ে যাচ্ছে, আমরা সব কিছু মেশিনের ওপর সব কাজগুলো করছি। আগেকার দিনে যেমন সাইক্লিং ব্যাপারটা হতো, হাঁটা চলার ব্যাপারটা বেশি হতো, এখনকার দিনে কিন্তু সেটা হচ্ছে না। আমরা কিন্তু মানে আস্তে আস্তে ওয়েস্টার্ন মানে দেশগুলোর মতন হয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমী দেশগুলোতে যেমন ওদের অনেক বছর ধরেই মানে লাস্ট হয়তো 200 বছর ধরেই তাদের মধ্যে একটা মানে মেশিন ইউজ করা, মেশিনের মাধ্যমে নিজেদের কাজকে করা। আমাদের মতন ডেভেলপিং কান্ট্রি। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। GT रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स। ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। That means ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर इस्पात भवन के 6 मंजिला में आग लग गई और आग लगने के कारण अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। गुरुवार की दोपहर को आग लगने से काम कर रहे लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ देर के बाद 2 दमकल विभाग के इंजन मौके पर पहुंच गए और काफ़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। सूत्रों के मुताबिक 6 मंजिला में इंटीरियर डेकोरेशन का काम चल रहा था। किसी कारण शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ कागजात जले हैं, इसके साथ कुछ फर्नीचर भी जलकर राख हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 6 मंजिला में आग लगी, धुआं निकल नहीं पा रही थी। कुछ लोग इसी में फंसे हुए थे। उसके बाद एक तरफ का कांच का खिड़की तोड़ा गया, उसके बाद जाकर धुआं किसी कारण बाहर निकला। बहरहाल समय पर ही आग पर काबू पा लिया गया। इस विषय को लेकर दुर्गापुर इस्पात भवन के जनसंपर्क अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई। पहले फोन पर, उसके बाद व्हाट्सएप में लिखकर भी, फिर भी कोई भी वहां से जवाब नहीं मिला। ठीक है अभी उधर तो आग लगा हुआ है, इधर पूरा फायर ब्रिगेड से करके आग कहाँ से बोल रहे हैं? आग लगा दिया आप लोग, आया अगर उनको हो नहीं हुआ दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 स्थित प्राणी संपदा विभाग के द्वारा एक एम्बुलेंस का उद्घाटन जामुड़िया ब्लॉक की पंचायत समिति सह सभापति रेणुका बावरी, कर्माध्यक्ष जगन्नाथ सेठ, अनिमेश बैनर्जी के अलावा ब्लॉक के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस संबंध में बताया गया है कि जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में सभी 10 पंचायत क्षेत्र हैं। इन पंचायत क्षेत्रों में मवेशियों को चिकित्सा संबंधी सेवा देने के लिए आज पूरे पश्चिम बंगाल के ब्लॉक कार्यालय के द्वारा इस तरह के एम्बुलेंस पर इस सेवा का उद्घाटन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर महीने इस मोबाइल एम्बुलेंस सेवा से हर पंचायत इलाकों में 20 पशु चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे ताकि इनके इलाज में कोई कमी न आए। मुझे दादा आज के কি ছিল সেটা যদি জানান। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ প্রাণী সম্পদ বিকাশের যে গাড়িটা বাহনটি আমাদের এই জামুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতি অন্তর্গত প্রাণী সম্পদ দপ্তরে উদ্বোধন করা হলো। সেই গাড়িটি উদ্বোধনের ফলে আমাদের এলাকার যে গ্রামীণ এলাকা সেগুলো খুবই উপকৃত হবে এবং 20টার বেশি আমাদের ক্যাম্পও হবে, যেখানে যারা জীবিকার সাথে যুক্ত আছে, পশুপালন যুক্ত আছে, সেই মানুষগুলো ডোর টু ডোর তাদের কাছে পৌঁছে যাবে গাড়িটা। তার ফলে জামুড়িয়া এলাকায় সত্যি আমাদের একটু আনন্দের দিন যে আমরা গাড়িটা পেয়ে আমরা খুব খুশি। এবং শুধু আমাদের ব্লকই নয়, 214টার উপর ব্লকে আজকে এই গাড়িটা দেওয়া হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। এতে কতটা স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে গ্রাম অঞ্চলে কতটা সুবিধাজনক পাবে? গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু খুবই সুবিধাজনক। বড় বড় আগে আমরা দেখতাম বড় বড় যদি গরু বা বড় বড় যেগুলো থাকতো পশুপালনগুলো, তাদের পক্ষে এখানে আসা খুব কঠিন ছিল। এখন কিন্তু সবথেকে বড় যেটা সুবিধা হলো যে গাড়িতে তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। একটা সময় ছিল একটা গরুকে অসুস্থ হয়ে যেত, তাকে এখানে আনা খুব কঠিন ছিল, কিন্তু গাড়িটির ফলে যদি কোনো অসুস্থ গরু, কুকুর বা কোনো রকম বড় কোনো জন্তু পড়ে থাকে, এই গাড়িতে সেখানে যে ট্রিটমেন্টটা সরাসরি যেয়ে করতে পারবে অফিস টাইমের মধ্যে। কীভাবে যোগাযোগ করবে? যোগাযোগ এখানে একটা আমাদের হেল্পলাইন নম্বর দেওয়া আছে গাড়ির মধ্যে, সেই হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারবে এবং এখানে যে আধিকারিক আছেন, ডিএলও সাহেব আছেন, পিও আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করেও করা যাবে। পরিষেবাটার কি কোনো সময়সীমা আছে? পরিষেবার সময়সীমা বলতে আমি যতটা জানি যে অফিস টাইম যেটু সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টার মধ্যে পরিষেবা অবশ্যই পাওয়া যাবে। তারপরেটা পরবর্তী কী হবে সেটা হয়তো পরবর্তীকালে আমি হয়তো জেনে বলতে পারবো। আপাতত জানি অফিস টাইমের সুবিধা পাওয়া যাবে। কি আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম জগন্নাথ শেঠ, মৎস্য প্রাণী সম্পদ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ। যে গাড়িটি আজকে এখানে উদ্বোধন করা হলো সেটি শুধু জামুড়িয়া ব্লক নয়, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় 214টির ওপর ব্লকে এই গাড়ি আজকে উদ্বোধন হয়েছে। এবং এটাতে মানে আগে আমরা দেখেছি যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য জায়গা থেকে বহন করে এনে এখানে চিকিৎসা করা খুব কঠিন ছিল। সেই জায়গাটা থেকে আমরা এই গাড়িটি পাওয়ার পর আমরা ওই জায়গায় পৌঁছে যাবো দূরত্ব এবং কাজ করা যাবে। এবং যে 20টার ওপর আমাদের একটা টার্গেট আছে ক্যাম্প। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।